بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کو ان کی خواہشات کی چیزیں یعنی عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی تو بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، بڑی زینت والی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں، ان چیزوں میں بذات خود کوئی چیز بری نہیں ہے اور نہ ان سے محبت کرنا کوئی بری چیز ہے، بلکہ ان سے محبت، ان سے چاہت وہ انسانی فطرت میں موجود ہے اور فطری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بری نہیں ہوتی۔ بیان کر کے کسی طریقے کے ساتھ جو چیز بتانا چاہتے ہیں، جس چیز کی طرف اہل ایمان کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں شامل ہو جاتا ہے، نظام ابدیت میں جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کی اور جنوں کی پیدائش کی اصل مقصد وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں رہیں۔ اس نظام ابدیت میں جب آدمی شامل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قدم بہ قدم انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ دیکھ لو یہ دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور ان سے محبت بھی کرنا جائز ہے، لیکن یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ کا تعلق قائم ہوا ہے، اس نظام ابدیت میں رہ کر ان چیزوں سے اتنی محبت نہیں کرنی، اتنی توجہ ان کی طرف نہ ہو جائے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نظام ابدیت میں جو آپ کا تعلق ہے وہ مجروح نہ ہو جائے۔ اس تعلق کو برقرار رکھنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ چیزیں بھی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور دنیا میں جو رنگینیاں ہیں، دنیا میں جو باغات ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، دنیا کی انہی کی وجہ سے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے دل میں ان کی محبت فطرت میں ڈال دی گئی ہے، وگرنہ اگر نہ محبت ہوتی تو پھر یہ رنگینیاں، یہ سب چیزیں نہ ہوتی۔ تو یہ دنیا بھی اس سے آباد ہے۔ فرمایا کہ ان چیزوں میں رہنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، ان سے ایک حد درجے تک آپ محبت رکھ سکتے ہیں، لیکن
आपकी चाहतें, आपके ताल्लुकात जो हैं वो इन चीज़ों से इतने न हो जाएं कि वो निज़ाम अबदियत में कहीं खलल अंदाजी न हो जाए। इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, तारे को दुनिया नहीं होना, बल्कि इन चीज़ों में रहते हुए, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, इनमें रहते हुए आपने अल्लाह तबारक व तआला से अपना ताल्लुक उसी तरह कायम करना है जो अल्लाह तबारक व तआला आपकी रहनुमाई करेगा, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। अब अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है अबदियत वाला, और दूसरी तरफ शैतान जो है उसने भी अपना अबदियत वाला निज़ाम कायम किया हुआ है, और उसने इंसान के इर्द गिर्द इतनी तागूती ताकतें लगा दी हैं जो 24 घंटे उसकी इतनी ज़बरदस्त फोर्स है, इतनी ताकतवर फोर्स है उसने बनाई हुई कि वो 24 घंटे इंसान के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है कि किसी तरीके के साथ इंसान जो है वो अल्लाह के निज़ाम अबदियत से निकल आए और मेरे निज़ाम अबदियत में आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला मुतनब्बिह कर रहा है कि कहीं इन चीज़ों की मोहब्बत करते करते फिसल न जाना, क्योंकि कभी यही चीज़ें जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी से निकाल कर अपनी बंदगी कराने लग जाती हैं। तो ये तागूत जो इर्द गिर्द इंसान के चक्कर लगा रहे हैं, ये शैतान की फोर्स जो चक्कर लगा रही है कि किसी तरीके के साथ इंसान को अल्लाह की बंदगी से निकाल लें, वो हमारी बंदगी करे, हमारा गुलाम बनकर रहे। तो उसमें दीनी रहनुमा और पेशवा की फोर्स भी उसने लगाई हुई है। बेटे भी कभी बन जाते हैं कि इंसान को अल्लाह की बंदगी से निकाल कर अपनी गुलामी में लाना चाहते हैं। कभी बीवियां, कभी ये माल मवेशी, सोना चांदी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कभी खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकती हैं, और इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी से निकल कर इनकी बंदगी करने लग जाए। ये सारी कोशिश कर रही हैं ताकतें कि जितने तवागीत हैं वो रात दिन कोशां हैं इस बात में कि इस इंसान को अल्लाह की बंदगी से निकाल कर अपनी बंदगी में लाएं। तो यहाँ मुतनब्बिह किया जा रहा है कि ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, कि लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीज़ें यानी औरतें, बेटे, सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे घोड़े, मवेशी, खेती, ये बड़ी खूबसूरत बना दी गई हैं इनके लिए, बड़ी जीनत वाली चीज़ें मालूम होती हैं। तो फरमाया ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, इंसान ये याद करे कि सिर्फ ये दुनिया की खूबसूरती है, और ये दुनिया का जो है ज़िंदगी का पीरियड ये बिल्कुल मुख्तसर सा है, शॉर्ट पीरियड है, एडहॉक पीरियड है। तो ये दुनिया तक है इनकी खूबसूरती, इनकी जीनत। फरमाया कि वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह तबारक व तआला के पास तो बहुत बड़ा खूबसूरत ठिकाना है इसके मुकाबले में। वहाँ इससे बढ़कर बहुत ज़्यादा नेमतें हैं जन्नत की, वहाँ बड़ी पुरसुकून जिंदगी है। यहाँ दुनिया को जन्नत बनाने में न लग जाना कि हम यहाँ सब कुछ हासिल कर रहे हैं और हमें कोई मसला बाकी न रहे, इसमें मुनहमिक न हो जाना, अल्लाह को न भूल जाना कि ये दुनिया जो है इसमें जितना भी आपको हासिल हो जाएगा, ये सोने चांदी के ढेर, ये माल मवेशी, ये बेटे ख़वातीन, जितना भी, लेकिन आप उतने मसाइल में घिरते जाएंगे और ज़्यादा मसाइल पैदा होते जाएंगे। हर कदम पर मसाइल ही मसाइल हैं, इनसे जान नहीं छूटती। कि आदमी कहता है कि मैं फलां चीज़ हासिल कर लूँ, फलां चीज़ हासिल कर लूँ, मुझे कोई मसला बाकी न रह जाए, मेरे पास कोठियाँ हों, बैंक बैलेंस हों, लंबी लंबी कारें हों, और मेरे बेटे हों, बेटियाँ हों, बीवियाँ हों, ये दौलत जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा हो, मुझे कोई मसला न रहे। लेकिन ये सब चीज़ें मिल भी जाएं तो फिर भी इंसान की ज़िंदगी मसाइल में घिरी हुई होती है और ज़्यादा घिरती जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत तैयार की है वो सिर्फ एक जन्नत ही ऐसा मकाम है कि जहाँ किसी को कोई मसला नहीं होगा, और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी खुशनुदी शामिल हाल होगी कि मालिक फरमाएगा कि आप यहाँ रहो और दायमी जिंदगी है, हमेशा हमेशा के लिए, अब कोई मसला आपको नहीं होगा और मैं भी आपसे नाराज नहीं होगा। ये भी इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी कि मालिक फरमाएगा कि यहाँ रहो
जो चाहो खाओ पियो ऐश उड़ाओ, मैं भी आपसे राजी रहूंगा, आपसे नाराज नहीं होऊंगा। कहीं इन्हीं चीजों में मुनहमिक होकर उस आखिरत को खो ना बैठना, उस आखिरत को मद्देनजर रखना, वो जिंदगी हासिल करने की कोशिश करना कि जिसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये मुख्तसर सा और शॉर्ट पीरियड गुजारने में कहीं अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी से अपने हाथ में धो बैठे, उसको न खो बैठे। अल्लाह के बंदे बनकर रहना है, अल्लाह का गुलाम बनकर रहना है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में इसलिए पैदा किया, इसलिए भेजा कि वो अपनी बंदगी करवाना चाहता है आपसे, कि मेरे ही बंदे बनकर रहें, मेरे गुलाम बनकर रहें, ये मेरे निज़ाम अबदियत से कभी निकले ना। और हर मालिक अपने ममलूक की कुछ जिम्मेदारियां लगाता है, कोई उनकी ड्यूटी लगाता है कि आपने ये काम करना है, आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, आपको ये सहूलतें फराम की जाएंगी, आपके ज़िम्मे ये ड्यूटी है। तो वो जब ड्यूटी सही अंदाज में अदा करता है तो उसको फिर वो तमाम सहूलियात मुयसर होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला चूँकि मालिकुल मुल्क है, तो उसने कुछ जिम्मेदारियां लगाई हैं कि तुमने ये करना है, दुनिया में रहकर ये करना है, ये करना है। उसने इसीलिए हमें कुरान मुकद्दस अता फरमाया, और फिर इसके मुताबिक जो है अपने नबी भेजे, और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने इस किताब पर पूरी तरह अमल करके दिखलाया, इस नक्शे के मुताबिक पूरी इमारत बनाकर दिखाई, अपना उसवा हसना छोड़ा। तो फरमाया कि ये चीजें जो हैं ये इम्तिहान हैं आपके लिए, तो इनकी खूबसूरती, इनकी अदाएं, कि ये चीजें जो हैं कहीं आपको आखिरत न बुला दें, और निज़ाम बंदगी जो है अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम अबदियत है, उससे कहीं आपको निकाल न दें। तो अब हमने बड़ा मोहतात कदम उठाना है, बड़े मोहतात तरीके के साथ रहना है, देखना है कि हमारी बीवियां, हमारे बेटे, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में ये भी मुतनब्बे किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल्लकुम। अहले ईमान जरा होशियार बन के रहना कि ये खूबसूरती की चीजें भी हैं, आपके दिल जो है उसमें मोहब्बत जो है इन चीजों की डाल दी गई है, लेकिन ये भी याद रहना कि आपकी बीवियों में से, आपकी औलाद में से आपके दुश्मन भी हैं, तो उनको भी आपने देखना है। और किस तरह देखना है कि जब बीवी है, जब बच्चे हैं, वो हमें अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम बंदगी से, निज़ाम अबदियत से निकाल रहे हैं, अपने फैसले पर मजबूर कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए कानून से हमें अलग कर रहे हैं, तो फिर आपने वहां मोहतात हो जाना है कि देखना है कि ये मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये नहीं है कि इनके पीछे लगकर आप जो है अल्लाह के निज़ाम अबदियत से निकल जाएं, क्योंकि बीवियां, औलाद, बिरादरी, ये रस्म व रवाज, ये सारे कवानीन, ये हमें अपनी बंदगी की तरफ बुलाते हैं कि हमारी बात मान लो। माशरती कवानीन, रस्म व रवाज जो होते हैं वो इंसान को मजबूर कर देते हैं। बेटे बेटियों की शादियां, गमियां, पैदाइश, या इनके जो हैं अदाएं कभी कभी ऐसी होती हैं कि वो हमें मजबूर कर देती हैं कि हम अल्लाह के निज़ाम अबदियत से निकलें और इनकी बात मानें, मजबूर हो जाते हैं माँ बाप। तो फरमाया कि ये ज़रा देखना है कि ये आपके लिए आजमाइश हैं, ये आप इम्तिहान दे रहे हैं। और फिर कहें कि ये बिरादरी जो है अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल मामला बन गया है, इनकी शादियों वाला मुश्किल मामला बन गया है, मैं अब अल्लाह तबारक व तआला की बात मानूं, इनकी मानूं, अगर इनकी बात न मानूं तो यहाँ तो मेरी ज़िंदगी, मेरा जीना जो है वो दोभर हो जाएगा। तो उस वक़्त इंसान पर मुश्किल आती है। तो इन मुश्किलात से भी ओहदा बरा होना है, इनसे भी निकलना है, ये जंप हैं, और यही आपको तरक्की की मनाजिल की तरफ ले जाएंगे। इन जंपों को क्रॉस करना है, इन्हीं में रहना है। ये नहीं कि तारे को दुनिया हो जाए और इनमें रह कर जो है फिर अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम अबदियत को भी नहीं छोड़ना। ये तर्क दुनिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने 3 सहाबा को, जिन्होंने अपने मुतल्लिक ये आदो पैमा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगले और पिछली तमाम गलतियां माफ़ कर दी हैं, तो हम तो गुनाहगार हैं, हम उनसे बढ़कर इबादत करें। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? एक ने कहा कि मैं अब तो सारी ज़िंदगी जो है शादी नहीं करूँगा,
और दूसरा जो है उसने कहा कि मैं सारी जिंदगी सौम रखूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं तमाम जिंदगी जो है वो रातों को जाग कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूंगा, सारी सारी रात सोऊंगा नहीं। ये उन्होंने आपस में यादो पैमा किया कि अब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बढ़कर इबादत न करें तो हम तो गुनाहगार हैं। जब ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मैंने शादियां भी की हैं और मैं रातों को सोता भी हूँ। हालांकि पहले शुरू शुरू में मैं रातों को जागता था, इतना जागता था कि मेरे पैर मुतवर्रम हो जाते थे और सारी सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता था। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। कुछ वक्त इबादत किया करें और कुछ वक्त जो है सो जाया करें। कुमिल लैला इल्ला कलीलन, निस्फहु, निस्फ तक कर सकते हैं आप, इससे थोड़ा जो है आप जितनी मर्जी कर लें। तो सोना है, जिस्म का भी आप पर हक है। मैं रात को मैं सोता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ और मैं सौम भी रखता हूँ और कभी कभी इफ्तार भी करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था। और ज्यादा पसंदीदा जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम वाले सौम पसंद किए गए, एक दिन रखा और सौम एक दिन छोड़ा, एक दिन रखा एक दिन छोड़ा। मैं सौम भी रखता हूँ लेकिन इफ्तार भी करता हूँ। तो जिसने मेरे तरीके को छोड़ा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो सहाबा किराम जिन्होंने अपने ऊपर मुशक्कत लगाई, जिस तरह ये लोग अहले तसव्वुफ जो है ये मुशक्कत चिल्ला नशीनी करवाते हैं और इनकी मनाजिल हैं वो मनाजिल तय कराते हैं, जिसमें फना फिर शेख होना होता है, फना फिर रसूल, फना फिल्लाह, ये 3 मनाजिल होती हैं तसव्वुफ की। ये तय कराते हैं मुरीदों से और मुरीद जो है वो पहली मंजिल ही तय करते करते जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। फना फिर शेख ही होते होते वो चिल्ले कर कर के फना फिर शेख होते होते अभी वो पहली मंजिल भी तय नहीं कर पाते कि खत्म हो जाते हैं। तो ये इन्होंने मुरीदों के लिए ये मंजिलें की हैं कि फना फिर शेख होना है, फिर फना फिर रसूल होना है और फिर फना फिल्ला होना है। और फना फिल्ला हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला हुलूल कर आएगा, इबादत तो शहूद हो जाएगी, हुलूल हो जाएगा। और अगर फना फिर रसूल की मंजिल पर पहुंचे तो रसूल आपके अंदर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह ये मनाजिल तय कराते हैं कि फना फिर शेख होना है। और ये पाए सबूत तक पहुंची बातें हैं, हम अपने पास से नहीं कह रहे। इनके बहुत बड़े जय्यद आलिम जो हैं, अहमद रज़ा खान अपनी मलफूजात में लिखते हैं अदीका नदिया के हवाले से कि जुनैद जो है बगदादी वो गया दरिया पर और दरिया वो किश्ती नहीं थी तो वो या अल्लाह कहते कहते दूसरे किनारे पर पहुंच गया पानी पर चलते हुए। एक और आदमी खड़ा हुआ था, उसने जब देखा कि ये तो बगैर किश्ती के ये पानी पर चलते हुए गुजर गया तो उन्होंने कहा मुझे भी कोई तरीका बतलाइए। तो उसने कहा, जुनैद ने, पीर साहब ने कहा कि देखो आप या जुनैद या जुनैद या जुनैद पुकारो, ये कहते हुए आप पानी पर चलते हो तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे दूसरे किनारे पर। वो या जुनैद या जुनैद या जुनैद कहता 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 चलता गया, पानी पर चल रहा है। अचानक उसके दिल में ये वस्ता आया, ये ख्याल आया कि वो पीर साहब वो तो या अल्लाह कहते हुए गुजरे हैं और मैं या शेख कह रहा हूँ, कहीं ये शिरक न हो जाए, ये तो कैसी बात है, मैं भी या अल्लाह कहता हूँ। तो या अल्लाह जब कहा तो वो गोता आ गया। अचानक गोता खा के जो उभरा ना तो कहा या शेख मैं तो गया। उन्होंने कहा कि वही कहे जो पहले कह रहा था। तो फिर उसने वही या जुनैद कहते हुए फिर पानी पर चलने लगा और दरिया अबूर कर गया। किनारे पर पहुंचकर उसने इसका शान नजूल पूछा, ये क्या है, वजह क्या है कि मैं या जुनैद कह रहा था तो पानी पर चल रहा था और जब या अल्लाह कहा तो मुझे गोता आ गया, डूबने लग गया। तो इसका फलसफा बतलाइए, क्या मंतिक है। तो जुनैद ने कहा कि अभी तू जुनैद तक तो पहुंचा नहीं है, जुनैद तक तो पहुंचा नहीं, अल्लाह के पास पहले ही पहुंच गया। यानी फनाफ शेख की मराजिल तो अभी आपने तय की ही नहीं है। तो वो मंजिल पहले तय करनी है, पीछे अल्लाह तक पहुंचना है। और जो रास्ते में ख्याल आया ना आपको, वो शैतान ने आपको तौहीद सिखलाई थी कि ये तौहीद
बदलाव। और तौहीद तो इस तरह अचानक जब कोई तौहीद के अल्लाह के निज़ाम बंदगी में आता है, निज़ाम अबदियत में आता है, तो इस तरह डूबने लग जाते हैं। वो डूब जाते हैं आदमी जो तौहीद पे इस तरह चलते हैं। अब तसव्वुर ये दिया जा रहा है कि जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ जाएगा तो डूबने लग जाएगा, और जो इधर से होकर जाएगा, जिस तरह यहूद और नसारा ने आस्ताने बनाए हुए थे और वो कहते थे कि बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला नहीं मिलता, पहले इधर आओ, इधर से होकर फिर हम आपके काल उधर मिला देंगे, एक्सचेंज बने हुए थे। ये सारे जो हैं वो कहते थे कि पहले हम और फिर अल्लाह, पहले हमको राजी करो फिर हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर देंगे। निज़ाम बंदगी में से निकालने के लिए सबसे पहले इस निज़ाम में लाए कि ये आबार और रोबान जो हैं, ये दीनी रहनुमा, दीनी पेशवा जो हैं, इन्होंने चक्कर लाया कि किसी तरीके के साथ इंसान को अल्लाह के निज़ाम अब्दियत से निकाल कर अपने निज़ाम अब्दियत में पहले लाएं। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबे कराम को कि अगर आपने इस तरह मुशक्कत में डाला और मेरा रास्ता छोड़ा, मेरा तरीका छोड़ा, मेरे सुन्नत को छोड़ा, तो फिर याद रख लो मेरे साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये आपके लिए इम्तिहान है, ये आपकी बीवियां आपके लिए इम्तिहान का बायस हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने इन बीवियों के पीछे शादियां करते वक्त बाद में औलाद होती है और निज़ाम ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे मौके आ जाते हैं कि जहां अल्लाह तबारक व तआला के कानून को इंसान छोड़ बैठता है, इनके पीछे छोड़ बैठता है, इनकी मोहब्बत के पीछे अल्लाह तबारक व तआला के कानून को पस पुस डाल देता है, उसके निज़ाम अब्दियत से आदमी निकल जाता है। तो यहाँ बतलाया जा रहा है कि देखो इनसे मोहब्बत भी की जा सकती है, लेकिन एक जायज़ हद तक, इस हद को क्रॉस नहीं करना जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हदूद कायम कर दी हैं, उन हदूद से फिर तजावुज़ नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ना औलाद के पीछे, न इन बीवियों के पीछे, और ना सोने और चांदी के इन ढेरों के पीछे कि मैंने वो हासिल करने हैं, सोने और चांदी और निशान लगे हुए घोड़े। ये जिस तरह आजकल की सवारियां कर लो, जिस तरह ये मोटरें, कारें, ये चीज़ें हैं, घोड़े तो इतने आजकल जो है वो सवारी के लिए नहीं, ये सबसे बहुत बड़ी उम्दा सवारी होती थी। आज जो है वो ये दूसरा निज़ाम है, तो वही है, इसके साथ बेशक लगा लें। अनाम और हर्ष, ये खेती बाड़ियाँ जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और जानवर जो हैं भैंसें, गायें, बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ सब जो हैं ये जानवर। तो ये कभी ऐसा भी होता है कि इनके पीछे इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम अब्दियत से निकलता है, उसमें खलल अंदाजी आती है। तो फरमाया कि ये थोड़ा सा जो है नफ़ा, थोड़ा सा आपके लिए ज़ेबो ज़ीनत, थोड़ी सी आपके लिए हो, तो इसके साथ मोहब्बत जो है इतनी नहीं करनी कि आप अपनी पूरी हमेशा की दायमी ज़िंदगी को आप ख़राब कर दें। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह तबारक व तआला के पास तो बहुत ज़्यादा नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशरिन, तो इतनी नेमतें हैं कि न आज तक किसी आँख ने देखी हैं, न किसी कान ने सुनी है, और न कभी किसी इंसान के दिल पर ऐसी चीज़ें खटकी हैं। तो उन नेमतों को ज़ाया न कर बैठना, जो दायमी नेमतें हैं, हमेशा की नेमतें हैं, उनके लिए जो है आपने भरपूर कोशिश करनी है। ये दुनिया के लिए आप खून पसीना लगाते हैं, बड़ी मेहनत और कोशिश करते हैं, और रात दिन जो है आप जो 99 के चक्कर में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा हासिल कर लूँ, उसके लिए भी मेहनत करनी है। रूह की ग़िज़ा जो है रूह को भी देनी है, वो मुर्दा ना हो जाए। ये इंसानी नफ्स जो है ये सरकश है, इसको आपने नफ्स मुतमइन्ना बनाना है, नफ्स लवामा बनाना है, ये मुलामत करे आपको, मुतमइन्ना बने। और जब मुतमइन्ना बन जाए फिर वो खुशखबरी आए जब इंसान दुनिया से रुखसत होने लगे कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, कि ए इत्मीनान वाली रूह आ अपने रब की तरफ खुशी के साथ और राज़ी होकर आ जा, राज़ियतम मर्ज़िया, बड़े खुश खुरम होकर आ जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि मेरे बंदों में दाखिल हो जा और जन्नत में दाखिल हो जा। ये रूह जा रही है मरने के बाद, अल्लाह का ऐलान हो रहा है। ये दुनिया वाली कब्र नहीं बतलाई कि आ जाए, दुनिया वाली कब्र जो है वो खोदी जा चुकी है,
और आ जाओ उसमें, अब दाखिल हो जा कब्र में। इस तरह नहीं फरमाया। फरमाया कि फादखुली फी इबादी, जहाँ नेक बंदे अल्लाह के पहुंच चुके हैं, यहाँ मेरे बंदे आ चुके हैं, इन बंदों में आकर दाखिल हो जा और राजी और खुशी हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा। अगर हम जिस्म को ग़िज़ा देते हैं, उसके लिए हम सुबह शाम बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं कि हम अपनी ग़िज़ा अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों, ये सारी ग़िज़ा की तलाश में, इसके जस्तजू में हम अपना खून पसीना लगा देते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। और इसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने खुद ज़मानत भी हमें दी है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन में कोई भी ऐसी जानदार चीज़ नहीं है कि जिसका अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे उसका रिज़्क ना हो। ये रिज़्क की जिम्मेदारी तो उसने ली हुई है। हम जितने भी हाथ पांव मारें, जितने भी हाथ पांव मारें, जो लिख दिया गया है उतना ही हमें हासिल होना है। उससे ज्यादा न एक दाना हमें हासिल हो सकता है, न एक कम दाना हासिल हो सकता है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे है, रिस्क जो उसने लिख दिया है बस उतना ही हमें होना है। ये अलहदा है कि हम असबाब इस्तेमाल करते हैं, असबाब इस्तेमाल करना सुन्नत है, वगरना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे लिया। और एक रूह की ग़िज़ा भी है, वह है अल्लाह की इबादत, वो सलात है, सौम है, वो अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत पर अमल करना है, तो वो सारी वो रूह की ग़िज़ा है। हम रूह को तो ग़िज़ा देते हैं कभी साल में ईद पढ़कर, कभी एक आध सौम रख लिया, कभी कभी जो है सलाद पढ़ ली, ऐसे काम किए, तो हम रूह की तवज्जो नहीं देते कि हम इसको भी हमने इसकी परवरिश करनी है, इसको भी हमने ग़िज़ा देनी है, ताकतवर बनाना है। और आप हिसाब लगा लें कि एक ताकतवर घोड़े पर एक मुर्दा से इंसान को बैठा दिया जाए, बिल्कुल कमजोर से इंसान ताकतवर घोड़े पर, सरकश घोड़े पर, तो वो इंसान की मर्जी के मुताबिक चलेगा या वो खुद अपनी मर्जी के मुताबिक इंसान को ले जाएगा? वो तो काबू में नहीं आएगा, वो तो अपनी मर्जी से इंसान को ले जाएगा। इसीलिए हमारा जो नफ्स है, ये नफ्स हमारा, ये हमें लिए फिरता है, अल्लाह की बंदगी की तरफ जो है वो नहीं आने देता, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, वो इस निज़ाम बंदगी से निकाल लेता है, क्योंकि वो कमजोर है, हम उसको काबू में नहीं रख सकते। तो इनको काबू में रखना है, और ये सारी नफसानी चीजें हैं, ये ख्वाहिशात हैं, ये बतलाया गया कि इन ख्वाहिशात को काबू में रखना है, और काबू में तब आएंगे कि जब आपका रूह भी ताकतवर होगा, उसको भी आप ग़िज़ा देंगे। आप अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात हैं, जो उसने हमारी तरफ भेजे हैं कि आपने दुनिया में रहकर इस तरह जिंदगी बसर करनी है, और आपके लिए ये हिदायत हैं, तो उन हिदायत पे अमल करके हमने अपने रूह को भी ताकतवर बनाना है। तो यहाँ मालिक ने फरमाया कि इनकी मोहब्बत, वो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी मोहब्बत कभी गालिब ना आए। तो अहले ईमान तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान जो है वो तो अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत करते हैं। अशद इसम तफज़ील का सीगा है जिसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा है, बहुत ज़्यादा मुबालगा है। वो तो बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से बढ़ चढ़ कर मोहब्बत करते हैं अहले ईमान, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन तो वो है कि तमाम चीज़ों से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत करे। तो वो अल्लाह की मोहब्बत तरजीह नंबर 1 हो गई, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये फिर तरजीह नंबर 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने मोहब्बत करनी है। और फिर उसके बाद ये चीज़ें हैं जिनके साथ मोहब्बत, और अगर हमने इनको किसी को भी तरजीह नंबर 1 पर रख दिया तो फिर वो निज़ाम अब्दियत में खलल अंदाजी होगी। ये हमने देखना है कि हमने ईमान का दावा किया है, और ईमान का दावा करने के बाद फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता है कि अब ईमान का दावा कर लिया है, तो अब अपनी जान, अपना नफ्स भी, अपना वजूद भी और अपना माल भी ये मेरे हवाले कर दे, बेच दे, और इसके बदले मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ये जो माल हैं, ये आपकी निजी मलकियत से, आपका माल भी, आपका वजूद भी आपकी निजी मलकियत से निकल कर ये सरकारी चीज बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला को दे दे। हालांकि दिया उसी ने है, माल उसी ने दिया है। ये किस लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जिस तरह आदमी घर में आता है, बच्चों के लिए कोई चीज लाता है, कोई मिठाई वगैरह लाता है, बच्चों को दे देता है मिठाई, और एक शफीक बाप जो है
बच्चों से फिर वो दोबारा मांगता है, ये थोड़ी सी मिठाई मुझे दे दे, ये चीज़ मुझे दे दे, तो लेना नहीं चाहता। तो ये नहीं चाहता कि ये मुझे दे दें और मैं खा लूँ, तो खुद लाया है। बच्चों से माँ, वो सिर्फ ये देखना चाहता है, उनका ज़र्फ देखना चाहता है कि बच्चे मेरे साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या मिठाई के साथ ज़्यादा करते हैं। मालिक ये चीज़ें खरीदता है, लेकिन इस तरह नहीं कि वो ले ली हैं उसने और हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इस्तेमाल करनी है। लेकिन मालिक ने फरमाया कि अब आपके पास ये चीज़ें हैं अमानत, ये आपका वजूद, ये भी अमानत है आपके पास, इसको उसी तरह चलाना है, उस तरह इस्तेमाल करना है अपने वजूद को, कि जिस तरह मैं कुरान मुकद्दस में आपको ऑर्डर दूं। ये किताब है, ये 30 पारों का मुसव्वदा है, आफाकी नुस्खा है, इस नुस्खे को उसी तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह मैं बतलाऊं आपको। ये आफाकी नुस्खा, जिसमें तमाम दुनिया के दुखों का मुदावा मौजूद है, और ये किताब आपके पास है। पूरी दुनिया में किसी के पास भी ऐसी उम्दा और कोई किताब नहीं है कि जिसमें तमाम कायनात के दुखों का मुदावा मौजूद हो। तो ये किताब आपके पास है। कितने खुशकिस्मत लोग हैं हम कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी उम्दा किताब हमें भेजी। तो इसकी रहनुमाई में रहकर, इसकी रहनुमाई में आपने जिंदगी बसर कर, वो आपको बतलाएगी कि अब इस वजूद को उठा, फिर इसको मस्जिद में जाकर खड़ा कर, सर्दी में वुजू कर, फिर आकर मस्जिद में खड़ा कर दे। जबान सच बोलना है, आंखें जो हैं उनसे वही काम लेना है, ये पाबंदी होगी आपका, कानों पर ये पाबंदी होगी, जबान पर ये पाबंदी होगी। ये सारा जो है चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने आगाही फराम कर दे कि अब अमानत समझ कर इसको इस्तेमाल करना है। इस तरह नहीं कि आप जो है अपनी मलकियत इस पर बना लें और फिर जिस तरह मर्जी है छुतर बेमहार की तरह इसको छोड़ दें, नहीं, बल्कि इसको एक हाथ में रखना है, पाबंदी में रखना है। और ये भी है कि वो तकलीफ दे भी नहीं होगी, कोई मुशक्कत वाली भी नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उसके वसअत के मुताबिक तकलीफ भी नहीं दी जाएगी, उस वसअत के अंदर रखा जाएगा। जहां तक इंसानी बसात है, जहां तक इंसानी ताकत है, उस ताकत के मुताबिक आपसे काम लिया जाएगा। लेकिन आपने उस हदूद के अंदर रहना है, हदूद को बार क्रॉस नहीं करना। अंदर रहकर जहाँ जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के मीनार कायम कर दी हैं, तो आपने वहां से तजावुज नहीं करना। ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह, अल्लाह के शायर को जो है वो क्रॉस नहीं करना। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये फरमाया कि इन चीज़ों से मोहब्बत वो इंसान की फितरत में दाखिल है, और ये भी बसाते खुद को बुरी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये उस वक़्त बुरी हो जाएंगी या ये उस वक़्त इंसान के लिए खराबी का बायस बन जाएंगी जब इंसान अल्लाह की बंदगी से निकल कर इनकी बंदगी करने लग जाए। तो इनको उस तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी है। तो फरमाया कि वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत बड़ा खूबसूरत ठिकाना है, वो जन्नत है। कुल नब्बियुकुम, ऐ मेरे पैगंबर इनसे फरमा दो कि क्या मैं तुमको खबरदार न करूं बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, इससे बहुत बेहतर चीज की तरफ आपकी रहनुमाई करूं। लिल्लज़ीन तक़ौ, वो लोग जो अल्लाह से डर गए, खशियत इलाही जिनके अंदर आ गई, वो मालिक से डरते हैं और 24 घंटे डरते हैं। ये नहीं कि किसी वक्त थोड़ा सा टाइम जुज़वी तौर पर खौफ आ गया और फिर जो है बेखौफ हो गया, नहीं, बल्कि उनके अंदर तकवा आ गया है, उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के खौफ आ गया है। और इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, इल्म वाले ही अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। जब इल्म होगा अल्लाह तबारक व तआला की हैसियत, पैगंबर की हैसियत और अल्लाह के कवानीन की हैसियत, उसके अहकामात के मुतल्लिक जब इल्म होता जाएगा तो तब इंसान डरेगा। बे इल्म जो है उसको क्या खौफ आएगा, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे मालिक वो कितनी बड़ी ताकत है और मालिक ने क्या अहकामात नाज़िल किए हैं। जब उसको पता नहीं होगा तो फिर तो खौफ नहीं आएगा। तो फरमाया कि डरने के लिए इल्म भी जरूरी है। आप इतना इल्म हासिल करें कि उसके मतलब कि मैंने जिंदगी किस तरह बसर करनी है, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं। मैं अब शुतर बेमुहार नहीं हूँ कि जिस तरह मेरी मर्जी चाहे मैं उस तरीके जिंदगी बसर करूँ, नहीं, मैं तो एक पाबंद हो गया हूँ। जिस तरह एक खातून जब निकाह में आती है तो पाबंद हो जाती है, अब वो पहले की तरह अपनी मर्जी की जिंदगी बसर नहीं कर सकती, उस पर कुछ पाबंदियां हैं जो ऐद हो जाती हैं। तो इसी तरह जब निज़ाम अबदियत में इंसान आता है
अल्लाह को अपना हकीकी माबूद, हकीकी इलाह तस्वर करता है, तो उस पर भी पाबंदियां, फिर वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं बल्कि अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर देता है। तो फरमाया कि इससे बेहतर मैं आपको जिंदगी न बतलाऊं कि वो क्या है, लिल्लज़ीन तक़ौ, वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। ये एक डिप्लोमा है, ये तकवा है, ये भी हमने इख्तियार करना है। और तकवे से ऊपर एक एहसान लफ्ज भी है, कुरान मुकद्दस में आया है कि मालिक हमें एहसान करने वाला भी देखना चाहता है। तकवा होता है अल्लाह तबारक व तआला से डरना, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करना, परहेजगारी इख्तियार करना, जिन जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने रोक लगा दी है उन चीज़ों से परहेज करना, उनके नज़दीक न भटकना, और 24 घंटे अल्लाह का खौफ अपने दिल में जागुज़े करना, पूरी तरह पाबंद करना कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सजा देगा, मुझे पकड़ेगा। एक तो ये हमने करना है, और दूसरा मालिक फरमाता है कि लिल्लज़ीना अहसनू, वो लोग जिन्होंने एहसान की रविश इख्तियार की कि हर अमल को बड़ी खूबसूरती के साथ करना है। एक हुक्म होता है उसकी इताअत होती है, किसी ने क्या हुक्म, वो आदमी ने काम कर दिया, और दूसरा होता है एहसान, यानी काम किया है लेकिन उसके पूरी जुज़ियात तक तमाम चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके के साथ अदा किया है, बड़ी खूबसूरती के साथ, कोई शिक उसकी रहने नहीं दी, कोई जुज़ उसकी नहीं छोड़ी, बड़ी खूबसूरती से, बड़े अच्छे अंदाज से उसने उसको सर अंजाम दिया है, खुशू व खुजू के साथ उसने उसको अंजाम दिया है, उसको एहसान कहते हैं। और मालिक ने फरमाया कि जब तकवा आदमी हासिल कर लेता है तो इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, फिर मुत्तकियों के लिए कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं, फिर अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है जब आदमी तकवे वाला ये डिप्लोमा, ये सनद हासिल कर लेता है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नात व नहर, मुत्तकी ही तो बागात में होंगे, उन जन्नात में होंगे और नहरों में होंगे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान की रविश इख्तियार करने वालों से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है उनको। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह की मय्यत हासिल होती है तकवा वालों को। और फरमाया कि ये कुरान मुकद्दस जो भेज रहा हूँ आपकी रहनुमाई के लिए, इसको वही लोग समझ सकेंगे जो लोग मुत्तकी हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, इब्तिदा में कुरान मुकद्दस ने फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि हर शक व शुबा से बाला किताब जो आपको दी जा रही है वो हिदायत है, और इससे हिदायत सिर्फ मुत्तकी हासिल कर सकते हैं, बाकी इससे हिदायत उनको नहीं आती। और वो तो कुरान सुनते ही कहीं गुमराह हो जाएंगे, वो तो अपने अहबार और रोबान के कौल कटोरे सुनने के आदी हैं, वो वहां तक वो इताअत कर रहे हैं, उनकी इताअतें छोड़कर वो अल्लाह की इताअत कैसे करें, वो तो मुती बने हुए हैं, बहुत से तागूती ताकतों के मुती बने हुए हैं, उनकी इताअत कर रहे हैं। इतनी बड़ी इताअतों को छोड़कर एक इताअत की तरफ आना, ये तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। तो मैं हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो हम कुरान से इस्तिफादा भी उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर तकवा आएगा, जब हमारे अंदर अल्लाह का खौफ आएगा, जब हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला के ऐद करदा कवानीन की पाबंदी आएगी, उसे रोका गया है जिन चीज़ों से, उनसे हम रुक जाएंगे, उनसे हम परहेज करेंगे, तो उस वक्त जो है वो तकवा हासिल होगा। तो फरमाया कि जब तकवा हासिल हो जाए तो फिर याद रख लो आपका हर अमल मेरे नज़दीक काबिल कबूल होगा। इन्नल्लाह यतकब्बलु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मुत्तकियों से ही कबूल करता है। जिस तरह मालिक ने फरमाया लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अमलियात हैं उनमें तकवा अगर होगा तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा, अगर तकवा नहीं है, खौफ नहीं है, तो वैसे ही आदमी गयाकारी कर रहा है कि मैं इस माशरे में रहता हूँ, मुझे दोस्त कहें, अब आप कहेंगे, फिर शौकार मुझे कहेंगे, ये सारे भाई ये तो सलात नहीं के दिखाई के लिए पढ़ ली, कोई काम कर लिया, ऐसी कोई चीज़ें कर ली कि देखो दुनिया को दिखलाने के लिए, उसमें तकवा नहीं है, उसमें परहेजगारी नहीं है, अल्लाह का खौफ जो नहीं है। फिर जो जमा तफरीक बाजार में, वही जमा तफरीक वो यहाँ कर रहा है, उसके दिल में जो है वो चीज़ नहीं है परहेजगारी वाली, तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं कबूल करता। अल्लाह ताला फरमाता है मैं तो कबूल करता हूँ सिर्फ मुत्तकी लोगों से। और जन्नत
اور जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के वादे किए वो सब के आगे जो है वो तकवा लगाया है, तकवा जरूरी है। तो फरमाया कि लिल्लज़ीन तक़ौ, वो लोग जिन्होंने तकवा हासिल कर लिया, मुत्तकी बन गए, वो उनके लिए क्या है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो बागात हैं कि जिनमें नहरें बहती हैं। अब देखो कि हम पूरी जिंदगी कमाई करते करते शायद एक बाग भी ना बना सकें, एक मकान वो भी बड़ी हम मुश्किल के साथ बनाते हैं तो वो भी ना बना सके। तो फरमाया कि वहां तो बागात है जिनके नीचे नहरें चलती हैं। और सूरत तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो ये चीजें जो हैं, कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व अशीरतुकुम व इख्वानुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा, अगर तुम्हारे बाप बेटे भाई, तुम्हारे जो खेशो अकारिब जो हैं वो, और वो महल्लात जो आपने बड़े अरमानों के साथ बनाए हैं, ये अगर आपको महबूब ज्यादा हो गई है ना, तरजीह नंबर 1 पर आपने रख दिया इनमें से किसी चीज को भी, ये चीजें तरजीह नंबर 1 पर अगर आ गई फिर उनको कह दो कि फिर इंतजार करो हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अपना फैसला लाए कि आप पर मौत आए, फिर मालिक के दरबार में सामने खड़े हो और आपसे सवाल किए जा रहे हो, जवाबदेही के लिए आप बेबसी के आलम में अपने मालिक के सामने करो। फतरब्बसू, फिर इंतजार करो इस बात का कि ये चीजें अगर आपने ये तरजीह नंबर 1 पर, तो ये जन्नात तजरी मिन तहतिल अनहार वो चीजें बहुत बड़ी उम्दा हैं, उनसे फिर इंसान को जो है कोई मसला भी नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, किसी दुश्मन का खौफ नहीं होगा, और वहाँ हमेशा हमेशा की बड़ी पायदार जिंदगी को आ रही है। तो कहीं एक थोड़े से पीरियड के लिए उस पायदार जिंदगी को खराब न करना। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे उसमें, हमेशा हमेशा के लिए है। व अज़वाज मुतहहरा, और उसमें बीवियां होंगी पाक। ये दुनिया में जो खवातीन, जो नेक खवातीन हैं, अल्लाह की बंदियां हैं, अल्लाह की बंदगी करने वालियां हैं, तो सारी जन्नत में जाएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको भी बहुत बड़ा बुलंद मकाम अता फरमाएगा। ये बीवियां होंगी, इनके अलावा हूरें भी होंगी, हूरात मकसूरात फिल ख़ियाम, वो खैमों में हूरें भी मौजूद होंगी, मोहल्लात में ये बीवियां भी होंगी। तो मुतहरतुन, पाक बीवियां होंगी। वरिज़वानुम मिनल्लाह, और सबसे बढ़कर ये चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी भी होगी, कि जैसे मालिक बुलाकर फरमाएगा कि आओ, क्या किस चीज़ की कमी बाकी है, कोई है और ज़रूरत, हल्लकुम हाजा, है कोई ज़रूरत? वो कहेंगे या अल्लाह इतनी चीज़ें मिल गई हैं, इतना माल कि हमें तो कोई अब ज़हन में बात नहीं आ रही कि इससे अलावा कोई भी और चीज़ हो, तो नेमतों से माला माल कर दिया है तुमने। तो फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला कि एक चीज़ है कि जाओ खुश हो जाओ कि आज के बाद मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँगा। ये बहुत बड़ा इनाम है कि कितनी आला तरीन जिंदगी है, कितने ऐसी कि जिसमें ऐश ही ऐश है, आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है, जो इतने बड़े मालिक है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, मालिक तो बहुत बड़ा सच्चा है, वो सच फरमा रहा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, मालिक से बढ़कर किसकी बात सच्ची हो सकती है। वो सच्ची जात जो है वो हमें बतला रही है कि ये सारे काम आपके लिए तैयार हैं। तो फिर कौन ऐसा आदमी है जो इतने बड़े इनामात को छोड़कर इस दुनिया में ऐसा मगन हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाए, उसके निज़ाम अब्दियत से निकल जाए आदमी। अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें दी हैं, ज़हन दिया है, हमें सुनने समझने की सलाहियतें दी हैं। मालिक फरमाता है कि देखो, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने जहन्नम के लिए जो मटीरियल तैयार किया है तो वो क्या होगा, इंसान और जिन होंगे। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, बहुत ज्यादा इंसान और जिन जहन्नम का ईंधन। तो या अल्लाह किस लिए किया है इनको? तो फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनको दिल दिए थे लेकिन इन्होंने दिलों से वो काम नहीं लिया कि जो लेना चाहिए था, तफक्को से खाली थे इनके दिल, वो कुरान मजीद को नहीं समझते थे, इस तरफ इनका दिल लगता ही नहीं था, वो सिर्फ ब्लड सप्लायर थे, वो सिर्फ खून की सप्लाई करने वाले, वो
गोश्त के बने हुए दिल इनके अंदर मौजूद थे। वो दिल नहीं थे जो कुरान मुकद्दस को समझ सकें, जो अल्लाह की बात को समझ सकें। लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा, तफक्को से खाली थे, समझ से खाली थे। वलहुम आयुनुल्ला युबसिरून बिहा, इनको आंखें दी थी, बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत, लेकिन इन आंखों से जो काम लेना था इन्होंने वो नहीं लिया। इन्होंने मज़ाहिर कुदरत को देखकर इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की इस कायनात में गौर फिक्र न किया। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, कि इन चीज़ों को देखते और फिर अल्लाह की मार्फत हासिल करते, अल्लाह की पहचान हासिल करते। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ये सारे काम हो रहे हैं, तो उनको गौर फिक्र करते तो इनको अल्लाह तबारक व तआला की पहचान हासिल। गौर फिक्र ही नहीं किया, इन आंखों से इन्होंने वो काम ही नहीं लिया। इन आंखों से और बड़ी चीजें, फजूल चीजें देखी, फजूल चीजों पर इन्होंने आंखों को बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने कुरान बीनी जो है उसमें कहाँ से काम न लिया, हदीस पढ़ने देखने समझने में उससे काम न लिया। वलहुम आयुनुल्ला युबसिरून बिहा, और याद रख लो कि ये चेहरे की आंखें जो हैं ये इतनी कीमती नहीं होती जितनी दिल की आंख जो है वो कीमती होती है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का की कुछ चंद आदमी जो हैं वो सिरदारान बैठे हुए थे कुरैश के, कि अचानक दरमियान में से उम्मे मकतूम एक नाबीना सहाबी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछना चाहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खामोश कर दिया। चुप, आप तो अपने हैं, बैठे हुए हैं, इनको जो है मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनको समझाने दो, हो सकता है इनको कोई हिदायत हासिल हो जाए, तो आप अपने बाद में पूछ लेना। उसको खामोश करा दे। फौरन वही हरकत में आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अबसा वतवल्लाह अन जाअहुल अमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफअहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तगना फअंत अन्हु तसद्दा फअंत अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा। मालिक ने फरमाया कि मेरे पैगंबर आपने चेहरा फेर लिया इस नाबीना सहाबी से, उनको इज्जत देते हुए आपने अपने सहाबी से चेहरा फेर लिया, ये अदा आपकी हमको पसंद नहीं आई। आइंदा के लिए आपने इन जान इशारों से चेहरा न फेरा करें। ये इसकी चेहरे वाली आंखें तो नहीं है, लेकिन ये तो कुरान को नहीं पढ़ सकता, और ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं दिल के बीमार, तो इनके तो अल्लाह ताला ने आंखें दी हुई हैं, इनके सामने फी सुहफ़ मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहहरतिन बियदी, कि इनके आगे अल्लाह की किताब खुली मौजूद है, इसको देख लें। इस नाबीने की किताब तो आप हैं, ये तो आपको पढ़ा करता है। फरमाया कि लोगो इन्नमा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, चेहरे की आंखें अंधी नहीं हुआ करती, दिल की आंखें अंधी हो जाती जो सीनों में मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सारे आंखें कान हर चीज दी है, तो इनसे हम इस्तिफादा उसी तरह करें कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और वो जन्नत हासिल करने की कोशिश, जहन्नम से बचें। कि हमने इनको गलत इस्तेमाल किया तो कान जो हैं वो कवाली जो बड़े शौक से सुनते हैं, और जब अल्लाह को कुरान पढ़े जाए फिर उगने लग जाते हैं। तो यहाँ डराया जा रहा है कि हम इनको इस्तेमाल करें, आंखों को, कानों को और दिल को, जो अल्लाह तबारक तआला ने जिस तरीके की हिदायत दी है इनको इस्तेमाल करना है। तो मैं कि वहाँ बीवियाँ पाक होंगी, अल्लाह ताला की रजामंदी होगी, और याद रख लो कि आपको 24 घंटे आप पर अल्लाह तबारक तआला नजर रखे हुए है, आपके अमलों को देख रहा है कि आप क्या क्या अमल कर रहे हैं, मालिक से आप छुप नहीं सकते। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों को देख रहा है कि वह बंदगी का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बात फरमाया कि जो निज़ाम अबदियत में आते हैं, असाबरीना वो सब्र करने वाले लोग होते हैं, वह सादिकीना सच्चे होते हैं, एक ज़बान से सच बोलना होता है, एक किरदार सच्चा होता है, उनका अकीदा सच्चा है, उनका किरदार सच्चा है, और उनके अमाल सारे वो सच्चे हैं, उनके काम जो हैं वो सच्चे हैं, वो हर काम को सच्चाई के तौर पर करते हैं। तो वह सादिकीना सच्चे हैं, वल कानितीना, और वो
अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में लगे रहते हैं, वल मुनफिकीना, वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करते रहते हैं। और उनका यकीन होता है कि जो अल्लाह की राह में जितना खर्च करेगा अल्लाह उसको और ज्यादा देता है। आज तक तारीख बतलाती है कि अल्लाह की राह में बहुत ज्यादा खर्च करने वाले जितने भी लोग गुजरे वो कोई गरीब नहीं हुआ, उसके पास दौलत खत्म नहीं हुई। ये तारीख बतलाती है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने बेदरेक अल्लाह की राह में खर्च किया हो और फिर वो भूखा हो गया हो, उसके बाद उसके पास कोई चीज भी न रह गई हो। नहीं, सदका जो है, अल्लाह की राह में खर्च करना जो है, ये दौलत और ज्यादा बढ़ाता है। लेकिन आदमी की नीयत जो है वो भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि जो कुछ भी हो जाए मैं तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करूंगा। और शैतान जो है ये मुझे कहीं धोखे में ना डाल दे कि वो मुझे वादे देता है फकर के, गरीबी के। शैतान याइदुकुमुल फकरा, फकर के देता है। और यामुरुकुम फिल फाशा, फाशा की तरफ जितना मर्जी खर्च कर लें, बड़ा खुश होता है, बहुत बेहतरीन काम किया जी। लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने वो डराता है, फकीर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। इस तरह आपने उसके निज़ाम को भी खूब देखना है, जांचना है कि ये मुझे क्या कह रहा है। वल मुस्तगफिरीना, और वो अपने गुनाहों की माफी मांगते रहते हैं। अकड़ नहीं जाते कि देखो मैंने एक माह पूरे सलाद पढ़ी है और मेरा बच्चा भी पास नहीं हुआ, एक महीना मैंने ये काम किया, ये सौम रखे हैं मैंने, और मेरा कारोबार जो है वो बैठ गया है, ये फलां काम हो गया। अहले ईमान अल्लाह का शिकवा नहीं करते। जब कोई काम खराबी होती है तो अपनी तरफ मंसूब करते हैं, ये मेरा ही को कसूर होगा। और जब कोई खैर पहुंचती है तो फिर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, ये मेरे मालिक की तरफ से है। वो शिकवा नहीं करते अपने मालिक का, जिस हाल में भी हो वो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करते हैं। और तकब्बर में ना आ जाए आदमी कि आदमी कहे कि अब मुझे इस्तिगफार करने की जरूरत भी नहीं, मैं तो 5 वक्त सलात पढ़ता हूँ, मैं ये सच बोलता हूँ, ये फलां करता हूँ, फलां करता हूँ। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से ये भी दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह इसको कबूल कर लेना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, काबा की तामीर हो रही है, तो क्या फरमाते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह ये हमने घर तो बना दिया, अब या अल्लाह शर्त कबूलियत से भी तू नवाज। अल्लाह तबारक व तआला के सामने दामन फैलाए हुए हैं, अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं, काम भी नेकी का किया है, लेकिन पैगंबर हैं, वो मालिक से अब कह रहे हैं कि कबूल तो तूने फरमाना है, कबूल कर ले या अल्लाह हमसे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। या अल्लाह तेरे सिवा तो कोई सुनने वाला भी दुआओं का नहीं है, कोई पुकार का सुनने वाला नहीं है, तू ही तो सुनने वाला है दुआओं का। या अल्लाह हमारी दुआओं जो है कबूल कर ले, सुन ले। वल मुस्तगफिरीना, वो दुआएं करते रहते, सलात पढ़ते हैं, या अल्लाह इसको कबूल कर लेना। वैसे तो मैंने नहीं पढ़ सका कि जिस तरह खुशू व खुजू जो है वो तेरी चाहत थी, लेकिन मैंने ये पढ़ी है, मुझे इससे ज्यादा और भी तौफीक देना कि मैं ज्यादा खुशू खुजू के साथ पढ़ूं। सौम रखा है, सदका किया है, ऐसी चीजें की हैं, तो या अल्लाह इनको कबूल कर लेना, मालिक इनको कबूल कर लेना, जाया न हो जाए। कहाँ है हमारी सलातें, कहाँ है हमारे इन्फाक फी सबीलिल्लाह, कहाँ है हमारी दूसरी बातें। तो हम तो ये कभी सलाद पढ़ते हैं ये सारी, तो उस तरह तो हक अदा नहीं कर रहे कि जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया। लेकिन फिर भी जो कुछ भी करते हैं फिर भी अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि या अल्लाह ये जिस तरह हक था वो हक तो अदा नहीं हुआ, लेकिन अब तू ही अपनी मेहरबानी से इनको सिर्फ कबूलियत से नवाज ले। मालिक के सामने आजिज़ी करनी है, जारी करनी है, क्योंकि जितना आप तवाज़ो करेंगे, जितना आप अपने आप को नीचे ले जाएंगे, इतना ही अल्लाह तबारक ताला आपको बुलंद कर देगा। जो बुलंद होने की कोशिश करे अल्लाह उसको गिरा देता है, और जो आजिज़ी इख्तियार करे अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। इस राह के भी अजीब नशेबो फराज हैं। जिस तरह पहाड़ पर चढ़े ना, बुलंदी पर पहुंचने के लिए झुकना पड़ता है। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलंदी पर चढ़ रही हो तो उस वक्त क्या कहे, अल्लाह अकबर, मैं तो जितना भी ऊंचा चढ़ता जाऊं या अल्लाह बड़ा तो तू ही है। और जब आप नीचे जाएं तो सुबहान अल्लाह, शेब में उतर रहे हो तो सुबहान अल्लाह कहें। मैं तो आजिज़ हूँ, जितना नीचे चला जाऊं आजिज़ ही आ जाऊं। आप तो इससे पाक है, हर आजिज़ी से पाक, हर ऐब से पाक, हर नुक्स से पाक है, हर कमजोरी से पाक, हर सबब से जो है अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है। सुबहान अल्लाह बहुत बड़ा जामे फिक्र है, सुबहान अल्लाह। जिस तरह आप झुकते हैं ना, नीचे जा रकू के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। सजदे में जाते हैं तो क्या कहते हैं, सुबहान रब्बी अल आला। पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं, बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको झुकना पड़ेगा, झुक कर ऊपर जाएंगे।
बुलंदी पर जा रहे हैं, झुकना पड़ेगा। वो पहाड़ आपको सबक दे रहा है कि बुलंदी पर पहुंचने के लिए आजिज़ी इख्तियार करने पर झुकना पड़ता है। और जब आप नीचे उतर रहे हैं, पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तो अकड़ना पड़ता है। तो पहाड़ वहाँ सबक दे रहा है कि जो लोग अकड़ते हैं वो पस्ती की तरफ चले जाते हैं। तो पहाड़ भी सबक दे रहे हैं इंसान को, हर चीज में इंसान के लिए सबक है, दर्स है। इन्ना लकुम फिल अनआम इबरा, मालिक ने फरमाया जानवरों में भी आपके लिए इबरत का सामान रख दिया गया है कि अगर कोई बिल्कुल अनपढ़ है, किसान है, जट है, वो लाइब्रेरियों में नहीं जा सकता, तो उसके सामने उसकी भैंस खड़ी है, वो मुबल्लिग है। उसके सामने उसके खेत जो हैं वो खड़े हैं, हर खोशा जो है वो उसके लिए मुबल्लिग है। भैंस जो है उसके सामने खड़ी, वो आपको बता रहा है कि उसका रंग जो है वो मनफी है, उसके खून का रंग मनफी है, उसके गोबर का रंग मनफी है। तो सब मनफी चीजों में से एक सफेद रंग का दूध मस्बत चीज निकाल कर देने वाला कौन है? इस बड़ी लिबर्टी में से वो मैंने जो चारा उसको डाला था, और इसके यहाँ निकालने वाला कौन है? तो वहां वो सबक दे रही है कि वहीं से आदमी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को, उसकी रुबूबियत को सीख सकता है। ये हर खोशा जो है, वो किसान उससे पूछे, वो मुबल्लिग है कि मैं तो एक दाना यहाँ फेंक गया था और उस जमीन में फेंक गया था जो लोहे को, स्टील को, हर चीज को खत्म कर देती है खाए। मेरा दाना इतनी हिफाजत में रहा और ये 100 दाने में ये मुंतकिल हो गया है, और फिर 700 दानों में। कुल्ले सुम्बुलत मियत हब्बा, हर खोशे में 100 दाना होता है। ये जो बिल्कुल सही हो ना गंदम, जो आज तो जमीनें भी कमजोर हैं, कभी खाद न मिली, कभी पानी न मिला, जो बिल्कुल ठीक ठाक जिसके पे है, तो 7 बालें निकलती हैं और 7 फिर खोशे होते हैं, और हर खोशे में 100 दाना होता है। तो एक दाने को 700 दाने में तब्दील करने वाला कौन है? तो वो भी मुबल्लिग है। वो उस किसान को जो लाइब्रेरियों में नहीं जा सकता, जिसको कुरान जो है वो नहीं पढ़ सकता, वो सारा, तो उसको वो सबक दे रहे हैं, वो मुबल्लिग हैं उसके। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया ये तेरे सामने खड़े होते थे, ये तो ये तबलीग कर रहे होते थे कि एक दाना फेंका वहां, तो तेरा दाना जो है वो उसको 700 दाने में तब्दील करके कौन सी जात है आपको देने वाली? तो आपने कभी सोचा, आपने कभी इसकी तरफ तवज्जो की? तो वो वहां उसके लिए भी सबक है। तो फरमाया वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और वो इस्तिगफार भी करते हैं, और इस्तिगफार के लिए भी उनको पता है कि ज्यादा कबूलियत का वक्त जो है और ज्यादा खूबसूरत वक्त जो है वो सहरी का वक्त है। तो वो सहरी के वक्त को मुंतखब करते हैं, उस वक्त उठते हैं आजानों से पहले, आखिरी वक्त, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलानात हो रहे हैं, है भाई मेरे साथ कोई समझौता करने वाला, मैं समझौते के लिए तैयार हूँ। है मेरे साथ कोई सुलह करने वाला? 80 साल गुनाह किए हैं, 80 साल तक उसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां की हैं। आ जाए, मालिक के रहमत जो है, आखिरी आसमान पे अल्लाह तबारक व तआला आते हैं, फरमाते हैं आ जाओ सुलह करने, मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह कोई आदमी बैठ कर ना कब्रिस्तान में रो रहा था, तो कह रहा क्यों रो रहा है? वो कह रहा कि ये इनको कहता था जिंदगी में कि मालिक सुलह करने के लिए तैयार है, सुलह नहीं करते थे। अब अल्लाह तबारक व तआला के साथ ये सुलह करने के लिए तैयार है, मालिक सुलह नहीं करता। अब ये मैच पे पहुंच चुके हैं कि अब मालिक इनसे सुलह नहीं करता। तो कबल इसके कि हम रोएं पीटें फिर दामन फैलाएं अल्लाह तबारक व तआला के सामने, तो उससे पहले पहले हम अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, तो फरमाया कि वो तो सहरी के वक्त उनकी रातें जो हैं वो रहती हैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने दामन फैलाए हुए गुजरते हैं। वो एहतिसाम बिल्ला करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दामन से चिमटे हुए होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनका ताल्लुक होता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हमने जो ऐलान किया है, जो अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानियाँ हुई हैं हम पर कि हम इस सीधे सिराते मुस्तकीम पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें चलाया, जिसका हम मुतालबा करते हैं हर रोज़ अल्लाह तबारक व तआला के सामने कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह हम तो दामन फैलाए खड़े हैं, कोई चीज़ भी नहीं मांगते आपसे, और को बैंक बैलेंस नहीं मांगते, गाड़ियां नहीं मांगते, और सर्वफलक इमारतें नहीं मांगते, और कोई चीज़ भी नहीं मांगते। ये तो तेरे दुश्मनों को भी मिल जाती हैं, तो उनको भी दे देता है। हम तो आपसे मांगते हैं ए दिन सिरात मुस्तकीम, कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमा दे, वो सिरात मुस्तकीम जो तूने अपनों को दिया, अपने प्यारों को दिया, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता तबके को जो आपने सिरात मुस्तकीम दिया। तो ये दामन फैलाकर आप अल्लाह तबारक तआला से ये सरगोशियाँ कर रहे होते हैं कि हमें वो सिरात मुस्तकीम अता फरमा दे। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमारी दुआओं को कबूल किया
اور शर्फ़ कबूलियत से नवाजा, हमें सिरात मुस्तकीम अता कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अब सिरात मुस्तकीम अल्लाह तबारक व तआला कि इस नेमत की कदर करें और सिरात मुस्तकीम पर सही चलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन।